ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਟੱਡੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਔਰ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ, ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੀਗਾ E is equal to KQ/R square. R is a distance of that point where we want to find the electric field and Q is a charge. ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਈਪੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ KQ/R square। ਤਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰजेस ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਪਰੇਟਡ ਬਾਈ ਸਮ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ 2a ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਬਾਈ ਡਾਈਪੋਲ। ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਹ ਜੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲਾਈਟ ਕਲਰ, ਇਹ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ Q ਚਾਰਜ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ Q ਚਾਰਜ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, P ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ? ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ R ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ P ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 2a। ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ 2a। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਡ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ A ਔਰ A। ਮਿਡ ਤੋਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ? R। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P, ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, that is equal to 2kPr divided by R square minus A square ਦੀ whole square। ਨੈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਆਏਗੀ? ਦੇਖੋ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ A ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਆਏਗਾ, B ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ A ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀਆਂ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟੁਵਾਰਡਸ ਦਾ ਚਾਰਜ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਜੋ ਫੀਲਡ ਆਏਗਾ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਚਾਰਜ। ਮੀਨਸ A ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੁਵਾਰਡਸ ਦਾ ਚਾਰਜ, ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਔਰ B ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਫੀਲਡ ਆਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਚਾਰਜ। ਨੈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਬਣੇਗੀ ਆਪਣੀ? ਦੇਖੋ A ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ, B ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਘੱਟ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਵਾਲਾ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, B ਵਾਲਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ A ਵਾਲੇ ਫੀਲਡ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਨੈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ B ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ, ਰਾਈਟਵਰਡਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? P ਇਜ਼ ਅ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਮੀਨਸ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਂਡ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ 0, ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਨ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ that is E vector 2kP's vector quantity dipole moment divided by R square minus A square ਦੀ square। ਮਤਲਬ ਜਿੱਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਧਰ ਹੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਕਸੀਅਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੇ, ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ E ਐਂਡ P is 0। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। R square minus A square ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ। ਓਕੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਇਫ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫॉर शॉर्ट डाइपोल। if R is much greater than A means ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ R ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫੀਲਡ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ A ਤਾਂ ਹੈਗਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਔਰ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਈਪੋਲ ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਈਪੋਲ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਜੂ। ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਈਪੋਲ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਬਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ R ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ A ਸਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸ R ਸਕੁਆਇਰ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੇਗੀ 2kpr ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ r ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਇੱਕ r ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ 3 ਰਹਿ ਗਈ ਪਾਵਰ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2kp ਬਾਈ r ਕਿਊਬ। ਮੀਨਸ ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਆਏਗਾ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਈਪੋਲ that is 2kp by r cube, and equatorial next axial line है, next है equatorial line। equatorial line देखो नेगेटिव चार्ज ए पॉइंट पे पिया, बी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, पी पॉइंट पे फील्ड पता करना चाह रहे हैं। नेगेटिव दा फील्ड टुवार्ड्स होएगा, इधर होएगा, पॉजिटिव दा फील्ड अवे होएगा। मीनस आ ए वाला फील्ड आ गया, इधर ए बी वाला आ गया। नैट फील्ड इन्हां दा रिजल्टेंट इधर बन जाएगा, नैट फील्ड इधर आ जाएगा। और जिहड़ा नैट फील्ड इक्वेटोरियल दे केस च आएगा दैट इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दी पावर 3/2, ये याद रखना। और अगर देखो आ वाला डिस्टेंस ए है, आर डिस्टेंस से पी पॉइंट है, तो पाइथागोरस अगर मैं अप्लाई करा, ये सारी इत्थे मैं पाइथागोरस अप्लाई करा तो मेरे को आ वाली लेंथ आऊगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दी अंडर रूट। मीनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दी अंडर रूट, और अपने को फॉर्मूला दे विच बट 3/2 है। देखो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होंगी है नैगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ए टू बी आ गई डाइपोल मूवमेंट। इलैक्ट्रिक फील्ड तुहाडा लैफ्टवर्ड आ रहा, इसका मतलब इत्थे की आ डाइपोल मूवमेंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच डायरेक्शन आ रही है ऑपोजिट। इन केस ऑफ इक्वेटोरियल एंगल बिटवीन इलैक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट इज 180 डिग्री, एंटी पैरलल, एंटी पैरलल कह लो या ऑपोजिट कह लो। तो जो इनू वैक्टर फॉर्म दे विच लिखांगे, वैक्टर फॉर्म दे विच लिखण दा मतलब आपां इहदी डायरेक्शन लिखांगे, तो डायरेक्शन आएगी इहदी E इज इक्वल टू इन केस ऑफ इक्वेटोरियल दैट इज के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। पी के उपर भी वैक्टर का सिंबल लगाता, बट डायरेक्शन इन्हां दी ऑपोजिट आ, तो अगे आपां नैगेटिव लगा देंगे। और इहदा भी अगर शॉर्ट डाइपोल का केस बना लीए, इहदा भी अगर शॉर्ट डाइपोल का आपां केस बना लीए इक्वेटोरियल दे विच, वैन आर इज मच ग्रेटर दैन ए, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नूं आपां अप्रॉक्स आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यह आ गया E इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, उसकी पावर कितनी है 3/2। तो आर स्क्वायर नाल 1/2 कैंसल, ये बन गया के पी बाय आर क्यूब। देखो ये आ गया इक्वेटोरियल दे शॉर्ट डाइपोल दे केस, और इत्थे कितना आ गया, इत्थे कितना सी 2kp बाय आर क्यूब एक्सियल दे केस। मीनस एक्सियल दा तां हैगा 2kp बाय आर क्यूब इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल, एक्सियल दा। इक्वेटोरियल दा शॉर्ट डाइपोल दे विच हैगा kp बाय आर क्यूब। इट मीनस एक्सियल दा जिहड़ा फील्ड है, एक्सियल दा जिहड़ा फील्ड है फॉर शॉर्ट डाइपोल दैट इज डबल ऑफ इक्वेटोरियल, डबल ऑफ इक्वेटोरियल। मीनस एक्सियल ते इक्वेटोरियल दी रेशो कितनी अपने कोले 2:1। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। एक होर कन्फ्यूजन, जे मान लो तुहानू चार्ज देते दो, मान लो 2 माइक्रो कॉलम, -2 माइक्रो कॉलम, 2 माइक्रो कॉलम, तुसी आ वाला डिस्टेंस तुहाडे कोले हैगा 3 और आ वाला डिस्टेंस हैगा 4, तो इत्थे पी पॉइंट ते पता करना, तो आ ऑफकोर्स आ डिस्टेंस 5 बन जाएगा पाइथागोरस नाल। तो फॉर्मूले दे विच लगाना 5 जिहड़ा है दैट इज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 दी, पर नीचे इत्थे फॉर्मूला दे विच पावर 3/2 आ रही है। इट मीनस ये तो 5 की वैल्यू है, बस बच्चे ना कई बार भरन दे विच गलती कर जाते हैं। फॉर्मूले दे विच आ है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2 की वैल्यू कितनी है 5, वो फरदर क्यूब करनी है आपां, तो 125 आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला च वैल्यू आप क्वेश्चन करांगे उदों पुट कर देंगे, इत्थे बच्चे गलती कर जाते कई बार। ओके, तो नेक्स्ट है टॉर्क ऑन एन इलैक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। देखो आ यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है जिसकी स्ट्रेंथ E है। आप कोई डाइपोल नूं रखता,
ਤਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਲਡ ਐਫ ਬੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਲਡ ਐਫ ਏ ਕਹਿ ਲਓ। ਬਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ ਹੀ, E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਬਾਈ ਕਿਊ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਵਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਊ ਹੀ, ਰਾਈਟ ਵਰਡ ਫੋਰਸ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਊ ਹੀ, ਲੈਫਟ ਵਰਡ ਫੋਰਸ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਊ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਘੁੰਮੂ ਆ, ਐਫ ਬੀ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡਾਈਪੋਲ ਘੁੰਮ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ O ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਟ ਫੋਰਸ 0 ਹੈ ਬਟ देयर इज सम टॉर्क। ਟਾਰਕ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆਹ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਫੜੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਵਰਡ ਘੁਮਾਓ, ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਰਡ ਫੋਰਸ ਲਾਓ ਤਾਂ ਪੈਨ ਘੁੰਮੂ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ 0 ਆਏਗੀ ਬਟ देयर इज ਨੈਟ ਟਾਰਕ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਰਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਾਓ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ PE sin थीटा, PE sin थीटा। थीटा is what? Theta is angle between dipole moment and electric field, dipole moment and electric field। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ A क्रॉस B ਨੂੰ ਆਪਾਂ AB sin थीटा ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ PE sin थीटा ਨੂੰ ਆਪਾਂ अगर वैक्टर फॉर्म च लिखिए इन वैक्टर फॉर्म च लिखने का मतलब डायरेक्शन, PE sin थीटा ਨੂੰ ਆਪਾਂ P क्रॉस E भी लिख सकते हैं, P क्रॉस E भी लिख सकते हैं। P की वैल्यू कितनी होंगी है 2A इंटू Q, E की वैल्यू मतलब P दे दें E दे दें थीटा दे दें तो आप टॉर्क कढ़ सकते हैं ये फॉर्मूला दे विच यूज करके। ये एक दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आउंदियां, देखो टॉर्क की वैल्यू आ गई, टॉर्क इज 0 वैन जो आप थीटा लवेंगे 0 डिग्री या थीटा लवेंगे 180 डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री। साइन 0 ते भी वैल्यू 0 होंगी है और साइन 180 ते भी 0 होंगी है, तो मतलब टॉर्क आएगा अपने को 0, दैट इज वैल्यू ऑफ मिनिमम टॉर्क। जो थीटा 90 आएगा तो साइन 91 होंगे तो उत्थे वैल्यू आएगी PE, साइन की वैल्यू 90 ते मैक्स होंगी है, दैट इज वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੇਸ ਕੀ ਆਪਣਾ 0 डिग्री ਤੇ 180 ਤੇ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਆਉਂਦਾ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਐਂਡ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਐਂਡ ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ। ਅਨਸਟੇਬਲ ਵੈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਆ ਇੱਕ ਬਾउल है, बाउल कोई भी बाउल कंटेनर लै लो, इत्थे एक बॉल रख ली आपां, अगर बॉल नूं मैं चक के इत्थे लै गया तो मैं छड्डता तो बॉल आपकी पोजीशन ते वापस आ जूगी, अगर मैं इधर लै गया इत्थे ले जाके छड्डता तो वापस आ जूगी। ਇਹਦਾ मतलब आपां फोर्स लगाउण तो बाद जदों थोड़ा जिहा डिस्टर्ब करन तो बाद ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਹੈ। ਅਨਸਟੇਬਲ ਕੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਾउल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਤਾ ਤੇ बॉल ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ। ਹੁਣ 0 डिग्री ਤੇ 180 डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਲ ਤੇ ਅਨਸਟੇਬਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, 0 डिग्री कहने का मतलब की है कि एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलैक्ट्रिक फील्ड इज 0, ਇਹਦਾ मतलब डाइपोल मूवमेंट नैगेटिव टू पॉजिटिव होंगी है, इलैक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड है, तो मैं जो डाइपोल रखूँगा इधर नैगेटिव क्यू इधर पॉजिटिव क्यू इस तरीके ना रखूँगा, इस तरीके ना आप रखांगे तो डाइपोल मूवमेंट भी अपनी इधर बन जूगी, एंगल भी आ बन जू। जो मैं इनू डिस्टर्ब किया
मैं पॉजिटिव क्यू ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ क्यू ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ मैं मतलब ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਆ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫੋਰਸ ਵਾਪਸ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਆਊਗੀ ਇਧਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਮੀਨਸ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਕਰ ਲਈਏ ਮੀਨਸ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਈਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ इधर डाइपोल मूवमेंट हुण इधर हो गई इलैक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया तो नैगेटिव क्यू नूं उपर ले आंदा पॉजिटिव क्यू नूं नीचे ले आंदा जो माड़ा जिहा डिस्टर्ब किया नैगेटिव क्यू ते फोर्स लगनी ऑपोजिट टू फील्ड पॉजिटिव ते लगनी इन द डायरैक्शन ऑफ फील्ड माड़ा जिहा डिस्टर्ब करन दे नाल जिहड़ा ये है ये रोटेट करन लग जूगा तो डिस्टर्ब किया तो वापस अपनी पोजीशन ते आए नहीं तो वो किहड़ा हो गया 180 डिग्री ते किहड़ा आ गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम नैक्सट जिहड़ा अपना आइडिया है दैट इज आइडिया ऑफ इलैक्ट्रिक फ्लक्स इलैक्ट्रिक फ्लक्स की है इलैक्ट्रिक फ्लक्स समझण तो पहला एरिया वैक्टर समझ लो की हुंदा एरिया वैक्टर की है जी मान लो आ कोई एरिया है ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरैक्शन च आपां कोई जे वैक्टर बना लीए तो एरिया वैक्टर है जिन्नी एरिया की वैल्यू है वो वैक्टर फॉर्म च आपां लिख लें इलैक्ट्रिक फ्लक्स की है किसी एरिया दे विचों कितनियां नंबर ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं दैट इज इलैक्ट्रिक फ्लक्स linked with the surface is in an electric field is total number of electric field lines crossing that surface अगर मैं दो सरफेस बनावा एक ए सरफेस है एक बी सरफेस है ए दे विचों लाइन जा रही ने इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन बी दे विचों जा रही ने देखो बी दे विचों ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन जा रही ने ए दे विचों घट जा रही ने तो बी दी इलैक्ट्रिक फ्लक्स आपां कह दांगे ज़्यादा है नंबर ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया तो आपां इहनूं लिखदे हुंदे आ जी फाई दैट इज ई इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा इत्थे थीटा हुंदा एंगल बिटवीन इलैक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वैक्टर की है किसी एरिया का मतलब परपेंडिकुलर लै लिया आपां इत्थे एरिया वैक्टर बनावांगे तो इस तरह ही बनेगा एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर जिहड़ा वैक्टर लगावांगे दैट इज एरिया वैक्टर ये फॉर्मूला आपां यूज करांगे अगे इहदे नाल रिलेटेड अपने कोले की है जी एंटरिंग फ्लक्स नूं हमेशा आपां नैगेटिव लैना और जो लीव कर रही है फ्लक्स उन्होंने आप हमेशा पॉजिटिव लेना एंटरिंग फ्लक्स नूं नैगेटिव लेना आउट जी फ्लक्स सरफेस नूं लीव कर रही है उन्होंने पॉजिटिव लेना हमेशा तो ये एक क्वेश्चन है ये छोटा जिहा क्वेश्चन रिलेटेड है कोई हैमीस्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस आर है उन्होंने यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च रखता तो ये दो ओरीएंटेशन है तो फ्लक्स लिंक दसनी है पहले केस दे विच देखो अगर मैं सिर्फ फ्लैट सरफेस ना पूछ ला तो यदा एरिया वैक्टर इधर नूं बनूगा तो फील्ड इधर नूं आ एंगल 90 कॉस 90 0 फ्लैट सरफेस ना बट इन्होंने पूछा फ्लक्स लिंक विद बाउल ए सरफेस नाल तो 0 ही आ जाएगा हुण ए सरफेस दे नाल लिंक हैगा पर ये नैट फ्लक्स कितनी लिंक अपनी 0 ए केस का आंसर है 0 का रीजन की है देखो जे इधरों 5 फ्लक्स एंटर की इधर इन्नियां नंबर ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ने तो उन्नी फ्लक्स ही बाहर गई एंड टोटल फ्लक्स की है फ्लक्स एंटर कितनी कर रही है एंड फ्लक्स लीव कितनी कर रही है एंटर कितनी कर रही है एंटरिंग फ्लक्स नूं नैगेटिव लेना दैट इज -5 आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव लेना क्योंकि जिन्नियां नंबर ऑफ फील्ड लाइन एंटर कीतियां सी उन्नियां ही बाहर जाणगियां ज़्यादा तो नहीं आ सकदियां तो नैट फ्लक्स इत्थे की आ जाऊगी 0 सैकेंड केस दे विच की है सैकेंड केस दे विच की है 0 नहीं आएगा क्योंकि इनू इस तरीके नाल रखा गया और ये नीचे वाला आप क्या नीचे वाला हॉलो है तो आप की क्या देखो
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਅਲਾਓ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੌਲੀ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਉਲ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਅਲਾਓ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, ਫਲਕਸ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਮੈਟਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ 0 ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਐਂਟਰਿੰਗ ਆਊਟਵਰਡ ਦਾ ਸਿਮੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਆਏਗੀ E ਇੰਟੂ ਏਰੀਆ। ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਲ ਅਲੋਏ ਕਰੇਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਪਾਈ ਇੰਟੂ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਤਾਂ ਗੌਸ ਲਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਲਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਲਕਸ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ, यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कॉलम एग्जिस्ट कर रहा पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग। अगर मैं एक्सिस बना ला, आ एक्स एक्सिस है, आ वाई एक्सिस है, आ जैड एक्सिस है। इलैक्ट्रिक फील्ड अपना हैगा 10 न्यूटन पर कॉलम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो तुसी कोई स्क्वायर का सरफेस आ 20 सेंटीमीटर जिहदी साइड है उन्होंने एक्स वाई प्लेन च रखता, एक्स वाई प्लेन च रखता मीनस इस तरह एक्स वाई प्लेन तो दसो ਉਹਦੇ ਨਾਲ फ्लक्स लिंक कितनी है। पहले का ए का आंसर दे रहे हैं, एक्स वाई प्लेन जो रखा जाओ, देखो एक्स वाई प्लेन च एरिया वैक्टर परपेंडिकुलर आना होंगे, जे वो एक्स वाई प्लेन च तो एरिया वैक्टर जैड एक्सिस दे वाली साइड आऊगा और इलैक्ट्रिक फील्ड अपना एक्स एक्सिस वाली साइड है। तो इस केस की होएगा, एंगल बिटवीन एक्स ते जैड दे विच 90 डिग्री एंगल होएगा। एंगल बिटवीन इलैक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वैक्टर इज 90 डिग्री। तो फ्लक्स होंगे E इंटू ए इंटू कॉस थीटा कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होंगी 0, तो फ्लक्स लिंक इज 0। बी केस दे विच की आ, सेम एरिया नू एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जैड एक्सिस है। बी दे विच की है, सेम एरिया नू आपां वाई जैड प्लेन दे विच रखता, मीनस इस तरह रखता 20 साइड वाले नू। इलैक्ट्रिक फील्ड एक्स वाली साइड है, यदा मतलब एरिया वैक्टर आउटवर्ड बनाना, एरिया वैक्टर किधर आएगा, इधर आएगा। जे वाई जैड प्लेन च है तो परपेंडिकुलर की बनेगा वो एक्स एक्सिस, तो एरिया वैक्टर भी इधर आ गया। एरिया 20 इंटू 20 दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, उन्होंने मीटर स्क्वायर कन्वर्ट किया तो 10⁻⁻⁴ इन्ने मीटर स्क्वायर आ गया। हुण जिधर एरिया वैक्टर है उधर ही इलैक्ट्रिक फील्ड है, इट मीनस एंगल इज 0, एंगल पैरेलल हो गए ना, तो फ्लक्स आएगी E इंटू ए इंटू कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू होंगी अपने को 1, तो फ्लक्स आएगी 10 इंटू 400 इंटू 10⁻⁻⁴। कॉस 0 1 आएगा तो यह बन गया 400 इंटू 10⁻⁻3। फर्दर होर सॉल्व कर लो, 4 इंटू 10⁻⁻1 मीन 0.4। और ये यूनिट्स की होंगे फ्लक्स दे, फ्लक्स दे यूनिट्स की होंगे, दैट इज E इंटू ए, ई दे की है न्यूटन पर कॉलम, एरिया दे की है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कॉलम मीटर स्क्वायर। एक होर गल, इलैक्ट्रिक फील्ड यूनिट फरदर जो पोटेंशियल पढ़ांगे ना उदों आ जाएंगे, वोल्ट पर मीटर भी होंगे है, और ये फिर इलैक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर अगर लगा लीए इंटू मीटर स्क्वायर तो एक कट्टिया गया की बन जाएंगे वोल्ट मीटर। तो कुछ भी यूनिट लिख दो, न्यूटन पर कॉलम मीटर स्क्वायर। नैक्सट आप गॉस लॉ करना नैक्सट वीडियो के विच, अज की वीडियो के विच इन्ना ही करांगे आपां, ते नैक्सट आप गॉस लॉ नैक्सट वीडियो के विच स्टार्ट करांगे। अगर वीडियो चंगी लगे तो शेयर जरूर कर दो और चैनल को सबसक्राइब जरूर कर दो। थैंक यू।